میں حیران پریشان رہ گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ جاگیردارنی تو بڑی خطرناک عورت نکلی۔ اس نے مجھے بے ہوش کر دینے والی چائے پلائی اور پھر اسٹریچر پر باندھ دیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ظاہر ہے جاگیردارنی کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ میں نے بلند آواز میں وشالی کو آواز دی، کئی بار اسے پکارا، ہر بار کمرے میں میری آواز کی بازگشت گونج کر رہ گئی۔ یہ چھوٹا سا نیم روشن کمرہ تھا۔ دیوار کے ساتھ اسی منحوس سرخ رنگ کا صوفہ پڑا ہوا تھا۔ دیواروں پر سرخ پردے لٹکے ہوئے تھے۔ یا اللہ خیر، میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی اور میرے ذہن میں پریشان کر دینے والے خیالات آنے لگے۔ یہ خیال بھی آیا کہ کہیں یہ عورت انڈین آرمی انٹیلیجنس کی عورت تو نہیں ہے۔ اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کمانڈو ہوں اور اس نے مجھے آرمی کے حوالے کرنے کے لیے بے ہوش کر کے اسٹریچر پر جکڑ دیا ہوگا۔ اس خطرے کا مجھے زیادہ امکان محسوس ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ دیر بعد حویلی میں بھارتی فوجی آئیں گے اور مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ میں نے 2-3 بار اپنی کلائیوں کو تسموں میں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر تسمے چمڑے کے تھے اور اس بری طرح سے انہوں نے میرے بازوؤں، کلائیوں اور ٹانگوں اور ٹخنوں کو جکڑ رکھا تھا کہ میں صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کے پنجوں کو ہی ہلا سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ دن کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے۔ کمرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا پرانی طرز کا دروازہ تھا جو بند تھا۔ باہر سے کسی قسم کی کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعا مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے باہر سے آدمیوں کے بولنے کی آوازیں اور ہلکے ہلکے قہقہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں دور سے آ رہی تھیں، پھر یہ آوازیں قریب سے ہوتے ہوئے آگے نکل گئیں۔ اس کے بعد پھر آدمیوں کے بولنے اور قہقہے لگا کر باتیں کرنے کی آوازیں آئیں اور یہ آوازیں بھی کمرے کے قریب ہو کر آگے نکل گئیں۔ ان میں عورتوں کی آوازیں بھی تھیں۔ لگتا تھا کہ کمرے کے باہر کوئی راہداری ہے جہاں سے لوگوں کی ٹولیاں گزر رہی ہیں۔ 4-5 ٹولیاں گزر گئیں تو میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ کدھر سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ آدمیوں کی آوازیں آئیں تو میں یہی سمجھا کہ بھارتی سپاہی مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، لیکن جب آدمیوں اور عورتوں کے ہلکے ہلکے قہقہے بھی سنائی دیے تو معلوم ہوا کہ یہ فوجی نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہی موت کی خاموشی چھا گئی۔ میں نے خدا سے یہ دعا بھی مانگی کہ یا اللہ پاک مجھ پر دورہ پڑ ہی جائے اور میں انسان سے سانپ بن جاؤں۔ کم از کم میں سانپ کے روپ میں آ کر وہاں سے بھاگ تو سکتا تھا، لیکن میری یہ دعا بھی قبول نہ ہوئی۔ وقت اس طرح گزر رہا تھا جس طرح بہت زیادہ زخمی سانپ رینگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جن لوگوں کی آوازیں کچھ دیر پہلے آئی تھیں وہ آگے جا کر کسی اندھے کنویں میں گر گئے ہیں۔ ایک سناٹا تھا جس میں اس منحوس کمرے کے در و دیوار سنسنا رہے تھے۔ پھر اچانک کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں بند دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ 2 آدمی لگ رہے تھے۔ وہ دروازے کے پاس آ کر رک گئے۔ اس کے بعد تالا کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے اس آسیبی کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور میں یہ دیکھ کر حیران سا رہ گیا کہ 2 کالے سیاہ حبشی اندر آ گئے۔ وہ بالکل افریقہ کے حبشی تھے۔ سر کے بال چھلے دار تھے جیسے افریقہ کے حبشیوں کے ہوتے ہیں۔ کندھوں پر انہوں نے اسٹین گنیں لٹکا رکھی تھیں۔ اوپر کے دھڑ ننگے تھے۔ کمر کے نیچے سرخ رنگ کی سوٹن کی شلواریں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے الف لیلہ کے زمانے کے حبشی لگ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس آسیبی حویلی میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دونوں حبشیوں نے اندر آتے ہی اسٹریچر کو پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے جانے لگے۔ میں نے غصیلی آواز میں کہا، تم کون ہو اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حبشیوں پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا، جیسے وہ میری زبان ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ میرا اسٹریچر چلاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر ایک نیم روشن راہداری تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، میں فوج کا کرنل ہوں، میں تم سب کو کوارٹر گارڈ میں بند کر دوں گا۔ حبشی بڑے سکون کے ساتھ اسٹریچر کو راہداری میں لیے جا رہے تھے۔ راہداری ادھر ادھر سے گھوم کر آگے بڑھی تو مجھے انسانوں کی ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کسی بہت بڑے کمرے میں بہت سے لوگ بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں۔ یقیناً یہ وہی لوگ تھے جن کی ٹولیاں کمرے کے باہر سے گزری تھیں۔ یہ آوازیں آہستہ آہستہ قریب ہو رہی تھیں۔ پھر ایک اونچا دروازہ آ گیا۔ دروازے کے باہر بھی 2 سیاہ فام حبشی برین گننے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے اسٹریچر کو دیکھتے ہی دروازے کا ایک کواڑ کھول دیا۔ کواڑ کے کھلتے ہی انسانوں کی آواز صاف سنائی دینے لگی اور اندر سے روشنی بھی باہر آنے لگی۔ یا خدا، یہ کیا تماشا ہے! جیسے ہی حبشی میرا اسٹریچر لے کر دروازے میں داخل ہوئے، میں نے دیکھا کہ ایک ہال کمرہ ہے۔ میری دائیں جانب ہال کمرے میں اوپر سے نیچے تک لال رنگ کے صوفے بچھے ہوئے ہیں۔
सोफों पर रंग बिरंग लिबासों में औरतें और मर्द बैठे एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं। सामने एक स्टेज बनी हुई है। मेरा स्ट्रेचर उसी स्टेज पर लाया गया था। हबशी मेरे स्ट्रेचर को स्टेज की एक तरफ दीवार पर गिरे हुए सुर्ख पर्दे के पास ले गए और उसे मेरे सर की जानिब से जरा सा ऊपर उठाकर दीवार के साथ लगा दिया। शायद ये इसीलिए किया गया था कि मैं हॉल, कमरे और स्टेज का मंजर देख सकूं। मैंने बुलंद आवाज में चीख कर कहा, तुम लोग कौन हो? मुझे किस लिए जकड़ा हुआ है? मेरे बार बार शोर मचाने पर पर्दे के पीछे से एक सफेद लंबे कोट वाला डॉक्टर नमूदार हुआ। उसके हाथ में टीका लगाने वाली सिरिंज थी। मेरे करीब आकर उसने बगैर कुछ कहे सुने मेरी गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर यहाँ क्या हो रहा है? उसके बाद मेरे गले की रगें जैसे खुश्क हो गईं। मैंने बोलना चाहा तो मेरी आवाज नहीं निकलती थी। इन लोगों ने मेरी आवाज बंद करने के लिए कोई खास टीका लगा दिया था। अब मैं सिर्फ देख सकता था, सुन सकता था, बोल नहीं सकता था। मैं बेबसी के आलम में स्ट्रेचर पर जकड़ा हॉल में बैठे हुए रंग बिरंग कपड़ों वाली औरतों और मर्दों को देखता और कभी स्टेज को देखता जहां 4-5 हबशियों ने पत्थर की एक लंबूतरी मेज लाकर बिछा दी थी। मैं ये देखकर मजीद हैरान हुआ कि इस मेज की दोनों जानिब चमड़े के चौड़े तस्मे लटक रहे थे, जैसे इस मेज पर किसी को लिटाकर बांधा जाने वाला हो। हबशी मेज बिछा कर चले गए। हॉल कमरे में खामोशी छा गई। लोगों ने एक दूसरे से बातें करनी बंद कर दी। कुछ होने वाला था। मैंने देखा कि अगले सोफों पर सुर्ख और कासनी रंग की साड़ियों में मलबूस ज्यादातर बूढ़ी औरतें बैठी थीं। हॉल में काफी रोशनी थी। इतने में स्टेज पर एक जानिब से पर्दा हटा और वही मनहूस जागीरदारनी नमूदार हुई जिसने मुझे अय्यारी से हवेली में ले जाकर बेहोश कर देने वाली चाय पिलाई थी। मैंने चीख कर उसको गालियां देनी चाही मगर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। जागीरदारनी बड़ी शानदार सुर्ख रेशमी साड़ी पहने हुए थी। सफेद बालों का जूड़ा बनाकर उसने जूड़े में सुर्ख फूल सजाए हुए थे। हाथ में चांदी की हत्थी वाली लंबी छड़ी थी। उसने मेरे स्ट्रेचर की तरफ एक लम्हे के लिए भी नहीं देखा था। उसके स्टेज पर नमूदार होते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। जागीरदारनी ने हाथ ऊपर उठाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। जब हॉल में सन्नाटा तारी हो गया तो जागीरदारनी ने हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, सज्जनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, हमारी कामा सूत्रा क्लब के मेंबरों और इश्क मोहब्बत के देवता काम देवता के पुजारियों, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, बड़े सौभाग्य हैं कि आज की रात हम एक बार फिर इश्क मोहब्बत के देवता के आगे औरत और मर्द के असल प्यार का तोहफा पेश करने के लिए जमा हुए हैं। आप लोगों को ये सुनकर खुशी होगी कि इस दफा भी हम प्रेम देवता के चरणों में 2 बार प्रेम का तोहफा पेश करेंगे। जो सभा आज जमी है कल रात को भी जमेगी। इस पर सारा हॉल तालियों और लोगों के खुशी के नारों से गूंज उठा। जब लोग खामोश हो गए तो जागीरदारनी ने कहा, इसके साथ ही मैं कार्रवाई शुरू करने का ऐलान करती हूँ। सबसे पहले हमारी सभा की पुरानी रस्म के मुताबिक सब मेंबरों की खिदमत में सोमरस पेश किया जाएगा और सोमरस इंग्लैंड से खास तौर पर मंगवाई गई स्कॉच विस्की यानी आला तरीन शराब की शक्ल में आपको पेश किया जाएगा। सारा हॉल नारों, सीटियों और तालियों से एक बार फिर गूंज उठा। मैंने देखा कि अगली कतारों के सोफों पर बैठी हुई बूढ़ी औरतें ज्यादा जोशो खरोश से तालियां बजा रही थीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सभा किस किस्म की है और ये लोग यहाँ किस अंदाज में इश्क मोहब्बत का ड्रामा खेलने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं यही समझ सका था कि यहाँ खुले बंदों, औरत मर्द के प्यार मोहब्बत के मंजर दिखाए जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता था। मैं दिल में इन शैतान सिफत लोगों को गालियां दे रहा था जो औरत मर्द के जिनसी मनाजिर को इस तरह खुले बंदों दिखाने वाले थे। जिस किस्म का भयानक खेल वहाँ खेला जाने वाला था इसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, बल्कि मैं उसके मुताल्लिक तो सोच भी नहीं सकता था। जागीरदारनी ने जैसे ही अपनी तकरीर खत्म की, हॉल के मुख्तलिफ दरवाजों में से नीम उरियां लड़कियां शराब की बोतलों से भरे हुए ट्रे लेकर हॉल में दाखिल हो गईं और हाजरीन को शीशे के ग्लासों में शराब डाल डाल कर देने लगी। लोग बड़े मजे से शराब की चुस्कियां लगाने और हंसी मजाक की बातें करने लगे। अगली कतार में बैठी हुई बूढ़ी औरतें भी खूब मजे ले लेकर शराब की चुस्कियां लगा रही थीं। मैं ये सारा शैतानी मंजर साकित नजरों से देख रहा था। जागीरदारनी भी स्टेज से उतरकर अगली कतार वाली औरतों के पास जाकर बैठ गई। उसके हाथ में भी शराब से भरा हुआ ग्लास था और वो चुस्कियां लगा रही थी। इस दौरान 2 काले हबशियों ने स्टेज के दरमियान में बिछी हुई संगमरमर की लंबूतरी मेज की एक तरफ एक छोटी मेज लाकर रख दी। हबशी स्टेज की एक तरफ स्टेन गन्ने लेकर खड़े हो गए। इतने में एक सफेद कोट वाला आदमी आया जिसने मुझे इंजेक्शन दिया और मेरी आवाज बंद हो गई थी। उसके हाथ में सफेद ट्रे था। ट्रे में ऑपरेशन करने वाली छुरियां चाकू देखकर मेरा दिल एक
एकदम जोर से धड़का। कहीं ये लोग मुझे अजियतें दे दे कर हलाक तो नहीं करने लगे। मैं तो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। खौफ से मेरे होंठ खुश्क हो गए। वो आदमी छुरियों चाकुओं वाला ट्रे छोटी मेज पर रख कर चला गया। हॉल की रोशनियां थोड़ी थोड़ी मध्यम कर दी गईं। हॉल कमरे में संस्कृत के श्लोक पढ़ने का म्यूजिक बुलंद हुआ। औरतें और मर्द उसके साथ साथ गाने लगे। जागीरदारनी भी झूम झूम कर गा रही थी। फिर म्यूजिक एकदम थम गया। स्टेज पर रोशनी ज्यादा कर दी गई। जागीरदारनी ने खड़े होकर ऐलान किया, कामासूत्र सभा के सज्जनों, देवता की पूजा शुरू होती है। स्पीकरों पर घुंघरुओं की छन छन से सारा हॉल गूंजा। अचानक एक जानिब से पर्दा हटा और एक औरत नीम ओरिया लिबास में घुंघरू छनकाती रक्स करती स्टेज पर नमूदार हो गई। उसने स्टेज के किनारे पर जाकर हॉल में बैठे हुए लोगों को झुककर प्रणाम किया और स्टेज के वस्त में आकर रक्स शुरू कर दिया। स्टेज पर काफी रोशनी थी। मैंने उस रक्कासा को फौरन पहचान लिया। ये विशाली थी, वही औरत जिसने मुझे जागीरदारनी के दीवान खाने में चाय ला कर दी थी और 2-3 बार इशारों के साथ चाय पीने से मना किया था। विशाली को देखते ही मैं समझ गया कि उसने मुझे चाय पीने से क्यों मना किया था, मगर अब देर हो चुकी थी। अगर मैं उस वक्त उसकी हिदायत पर अमल करता और चाय न पीता तो इस अजाब से बच सकता था जिसमें मैं अब फंस चुका था। विशाली रक्स करते करते मेरे करीब से भी गुजरी। मेरे स्ट्रेचर के करीब से गुजरते हुए उसने अपनी चाल और मध्यम कर ली। मेरी तरफ देखकर एक बार आंखें बंद कर ली, दोबारा आंखें खोली और सर को जरा सी जुम्बिश देकर आगे निकल गई। ऐसा उसने कई बार किया। हर बार वो रक्स करती हुई मेरे करीब आकर रुक सी जाती, आंखें 3-4 बार झपकती और आगे निकल जाती। शायद वो उस वक्त भी मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं समझ नहीं रहा था। मैं समझ सकता ही नहीं था। मेरे जहन की हालत बेहद उलट पलट हो चुकी थी। दहशत के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि ये सारी तैयारियां मुझे हलाक करने के लिए की जा रही हैं। हॉल में बैठे हुए लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। किसी ने बुलंद आवाज में कहा, कामासूत्र शुरू किया जाए। जागीरदारनी ने ये सुनते ही अपनी छड़ी वाला हाथ ऊंचा उठाकर ऐलान किया, कामासूत्र शुरू किया जाता है। ये सुनते ही विशाली रक्स करती स्टेज से चली गई। उसके जाने के बाद स्टेज की दोनों जानिब से मर्द और औरतों के 2 जोड़े निकल कर सामने आ गए। एक मर्द औरत एक जानिब से, एक मर्द और औरत दूसरी जानिब से आए थे। दोनों मर्द गेरुए रंग के साधुओं वाले लिबास में थे। औरतों ने सुर्ख रेशमी साड़ियां पहनी हुई थी। उनको देखकर लोग बेतहाशा तालियां बजाने और आवाज निकालने लगे। दोनों मर्द औरतों के जोड़े स्टेज पर बिछी हुई लंबी मेज के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में रक्स कर रहे थे। इन चारों के पांव में घुंघरू थे। मर्द भी औरतों की तरह डांस कर रहे थे। नाचते नाचते कभी वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लग जाते। मर्द औरत का और औरत मर्द का हाथ थाम लेती और इस तरह चक्कर लगा कर नाचना शुरू कर देते। नाचते नाचते औरतों ने अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। मर्दों ने भी वैसा ही किया। उसके बाद स्टेज की रोशनी एकदम सुर्ख हो गई और फिर स्टेज पर जो शैतानी ड्रामा शुरू हुआ उसने इखलाक और तहजीब की धज्जियां बखेर दी। मैंने आंखें बंद कर ली और मुझे ख्याल आया कि उसके बाद क्या होने वाला है। हॉल में से भी कुछ औरतें और मर्द स्टेज पर आ गए और वो भी स्टेज पर खेले जाने वाले शैतानी खेल में शरीक हो गए। ये ड्रामा देर तक होता रहा। फिर सब औरतें और मर्द स्टेज पर से चले गए। स्टेज की रोशनी तेज कर दी गई। जागीरदारनी ने ऐलान किया, काम देवता के पुजारियों, अब काम देवता के चरणों में खास तोहफा भेंट किया जाता है। हॉल में एकदम मौत जैसा सन्नाटा तारी हो गया। मैं यही समझा कि अब मेरे साथ कुछ होने वाला है, लेकिन स्टेज का पर्दा उठा और 2 हबशी एक आदमी को इस हालत में स्टेज पर लाए कि हबशियों ने उसको बाजुओं से पकड़ रखा था। आदमी नीम जान था, उससे चला भी नहीं जाता था। हबशी उसे घसीट कर ला रहे थे। उसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। बदनसीब बिल्कुल नंगा था। उसके आते ही हॉल एक बार फिर तालियों के शोर से गूंज उठा। हबशियों ने उस आदमी को संगमरमर की लंबी मेज पर लिटाकर उसके बाजुओं और टांगों को तस्मों से जकड़ दिया और जल्दी से पीछे हटकर स्टेज से उतर गए। अब स्टेज पर सिर्फ वही एक बदनसीब मेज पर जकड़ा हुआ रह गया था जिसके साथ न जाने किस किस्म का वहशियाना सलूक होने वाला था। जागीरदारनी ने छड़ी बुलंद करके एक श्लोक पढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, काम देवता को हमारी भेंट स्वीकार हो। सारे हॉल ने ऊंची आवाज में कहा, स्वीकार हो, स्वीकार हो। जागीरदारनी ने हुक्म दिया, काम देवता की पूजा शुरू हो। स्टेज की रोशनी एकदम तेज हो गई।
एक जानिब से वही आदमी जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था नमूदार हुआ, मगर अब उसने सफेद की बजाय काला कोट पहना हुआ था और सर पर सुर्ख रुमाल बंधा हुआ था। वो उस मेज के सरहाने की तरफ आकर खड़ा हो गया जिसमें खौफजदा बदनसीब इंसान को लिटा कर जकड़ा हुआ था। उस आदमी की दहशत के मारे पूरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अजीब किस्म की खुश्क और बैठी हुई आवाज में वो बार बार कह रहा था, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। लेकिन शैतानी तूफान के नक्कार खाने में उस बेचारे की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। स्याह कपड़ों वाले जल्लाद ने ट्रे में से एक कैंची उठाई और बदनसीब इंसान की तरफ बढ़ा। वो मेज के अकब में आ गया ताकि सामने हॉल में बैठे हुए लोग दरिंदगी और बर्बरियत का मुजाहिरा देख सकें। उसने कैंची से उस आदमी के सर के बाल तेजी से काटने शुरू कर दिए। जब वो काफी बाल काट चुका तो कैंची मेज पर रख दी और ट्रे में से एक निश्तर उठाया और बदनसीब इंसान के पेट को एक हाथ से दबाने लगा। बदनसीब आदमी रोते हुए खुश्क आवाज में चिल्ला रहा था, मुझ पर रहम करो। काले कपड़ों वाले जल्लाद ने मेरे देखते देखते आदमी के पेट में निश्तर जोर से घोंप दिया। आदमी की चीख निकल गई। उसकी चीख ऐसी थी जैसे बकरे को ज़िबाह करते वक्त उसके हलक से चीख निकलती है। इस चीख की आवाज पर लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाईं और नारे लगाने शुरू कर दिए। जागीरदारनी ने छड़ी वाला हाथ उठाकर कहा, सज्जनों, काम देवता की भेंट पर शोर न करो। आदमी के पेट से खून उबल उबल कर स्टेज पर गिर रहा था। जल्लाद ने निश्तर को बदनसीब के पेट में ही आधा धंसा हुआ रहने दिया और उठकर ट्रे में से एक लंबी और तेज धार वाली छुरी उठा ली। छुरी को लहरा लहरा कर लोगों को दिखाया। मेज पर लेटे दाएं बाएं शिद्दत दर्द के आलम में सर मारते और बिलबिलाते हुए बदनसीब आदमी के पांव की तरफ आ गया और उसके पांव की टखनों के करीब से रगें काट डाली। बदनसीब आदमी के हलक से एक और भयानक चीख बुलंद हुई और खून के फव्वारे निकलने लगे। फिर उसकी रानों पर से छुरी की मदद से गोश्त के लोथड़े उतारे जाने लगे। मुझे उस बदनसीब की सफेद हड्डियां नजर आईं तो दहशत के मारे मैंने आंखें बंद कर लीं। उसकी चीखों से हॉल गूंज रहा था। लोग संगदिलाना महवियत से ये खूनी मंजर देख रहे थे। जल्लाद डॉक्टर जब जिंदा इंसान की दोनों टांगों का गोश्त खुरच खुरच कर उतार चुका तो फिर उसके पेट में धंसे हुए निश्तर को निकाल कर ट्रे में रख दिया और छुरी से उसके पेट को ऊपर से नीचे तक काट कर खोल दिया और सारी अंतड़ियां निकाल कर स्टेज पर उछाल दी और जय काम देवता की का नारा बुलंद किया। हॉल में सारे तमाशबीन नारे लगाने लगे, जय हो काम देवता की, जय हो काम देवता की। खौफ के मारे मेरा अपना बुरा हाल हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे इसके बाद मेरी बारी आने वाली है। स्याहपोश जल्लाद ने उसके बाद चाकू से एक एक करके उसकी दोनों आंखें निकाल दी। उस वक्त वो बदनसीब शायद मर चुका था क्योंकि फिर उसके हलक से कोई आवाज न निकली। मौत ने आखिर उसे उस भयानक अजियत से निजात दिला दी। जल्लाद ने मरे हुए आदमी की गर्दन आरी से काट कर अलग कर दी और उसके सर को लोगों की तरफ उछाल दिया। लोग बदनसीब इंसान के सर को एक दूसरे की तरफ उछालने और नारे लगाने लगे। जागीरदारनी ने उस वक्त उठकर ऐलान किया, कामासूत्रा सभा के मेंबरों, मैं बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान करती हूँ कि कल इसी वक्त इसी जगह एक बार फिर काम देवता के चरणों में कुर्बानी पेश की जाएगी और कल जिस आदमी को काम देवता के सामने कुर्बान किया जाएगा वो आप लोगों के सामने स्ट्रेचर पर मौजूद है। जागीरदारनी ने छड़ी से मेरी तरफ इशारा किया। हॉल में से आवाजें बुलंद होने लगी, इसको भी आज ही कुर्बान किया जाए। जागीरदारनी ने कहा, नहीं दोस्तों, ये कुर्बानी कल आधी रात के बाद अदा की जाएगी। कल आप सब लोग आज ही की तरह यहाँ पहुँच जाएं। अब कुर्बानी की रस्म खत्म होती है। जय हो काम देवता की। सब लोगों ने जवाब में जोर से नारा बुलंद किया, जय हो काम देवता की। मेरी जान बच गई थी मगर सिर्फ एक रात के लिए। ये सुनकर मेरी जान आधी निकल गई थी कि कल मुझे कुर्बान किया जाएगा, यानी कल इसी तरह मेरी टांगों का गोश्त भी खुरचा जाने वाला था और मेरी भी आंखें निकाली जाने वाली थीं और मेरा सर भी काट कर लोगों की तरफ उछाला जाने वाला था। क्या मेरा यही अंजाम होना था? मैंने दिल में गौर किया। फिर जैसे किसी ने मुझे गैबी आवाज में कहा, नहीं करमदाद, तुम्हारा ये अंजाम नहीं होगा, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन खुदा मेरी किस तरह मदद करेगा, इसकी बज़ाहिर कोई सूरत नजर नहीं आती थी। दोनों हबशी मेरी तरफ बढ़े। उन्होंने मेरे स्ट्रेचर को सीधा किया और उसे चलाते हुए वापस उसी कमरे में ले आए जहां पहले मेरा स्ट्रेचर पड़ा था। स्ट्रेचर दीवार के साथ लगाकर दोनों हबशी बाहर निकल गए। बाहर से मुझे ताला लगाने की आवाज आई तो मेरा दिल डूब सा गया। मेरा हसरतनाक अंजाम मेरे
सामने था। अब मुझे सिवाय खुदा की जात के और कोई इस दरिंदा सिफत अजियतनाक मौत से नहीं बचा सकता था। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे खांसी आने लगी। उसके साथ ही मेरा गला जैसे खुल गया। मैंने आवाज निकाली तो मैं बोल सकता था। इंजेक्शन का असर खत्म हो चुका था, लेकिन अब मेरा बोलना, मेरा सुनना सिर्फ उस रात और अगले दिन तक ही था। दूसरे रोज रात को मुझे जल्लाद के सुपुर्द कर दिया जाना था। मैं स्ट्रेचर पर जकड़ा बेबसी की हालत में पड़ा खुदा को याद कर रहा था और दुआएं मांग रहा था कि वो मुझे इस अजाब से बचा ले। कमरे के अंदर और बाहर हौलनाक खामोशी छाई हुई थी। इस खून सर्द कर देने वाली आसेबी खामोशी में मुझे किसी चीज के चरचराने की हल्की सी आवाज आई। मैंने सांस रोककर उस आवाज पर कान लगा दिए। आवाज रुक गई। 2-3 सेकंड के बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। शायद कोई चूहा किसी कोने खुदरे में हड्डी वगैरह खा रहा था। फिर ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने कोई तख्ता आहिस्ता से एक तरफ कर दिया हो। उसके साथ ही कमरे में आहट और लिबास की सरसराहट सुनाई दी। ये सारी आवाजें जिधर स्ट्रेचर का सर था उस तरफ से आ रही थी। मैं उस तरफ देख नहीं सकता था। अचानक कमरे की नमदार फजा एक खास किस्म की गहरी खुशबू से भर गई। ये खुशबू मुझे पहली बार उस वक्त महसूस हुई थी जब जागीरदारनी के दीवान खाने में बैठे हुए खादिमा विशाली ने झुककर मेरे हाथ में चाय की प्याली दी थी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, विशाली क्या ये तुम हो? किसी ने जल्दी से अपना हाथ मेरे होंठों पर रख दिया। इन हाथों से हिना और इत्र की तेज खुशबुएं उठ रही थीं। खामोश रहो। वो मेरे सामने आ गई। वो विशाली ही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।